360 में افغان عوام کے خلاف طالبان کے تشدد میں اضافہ، امن کا قیام مشکل کیوں؟ ہم لوگ جو ابھی 80-90 لاکھ ہندو رہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ ہندو برادری پاکستانی معاشرے میں اپنے لیے جگہ کیوں تنگ ہوتے دیکھ رہی ہے؟ کیا عوامی رائے امریکی صدر کو کورونا کی وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی میں تبدیلی پر مجبور کر رہی ہے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں فائزہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ میں وائس آف امریکہ کے ایک ٹی وی اسٹوڈیو میں موجود ہوں، جہاں اب سے چند ماہ پہلے تک چند منٹس کے سیگمنٹس کی ریکارڈنگ کا وقت لینے کے لیے بھی اکثر کئی ہفتے انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن جب سے کورونا کی وبا نے ٹیمز کو گھروں سے کام کرنے پر مجبور کیا ہے، اسٹوڈیوز کم ہی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تاہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری پروگرامنگ میں کوئی خلل نہیں آیا ہے۔ وہ پروگرام جو ان اسٹوڈیو سے پیش کیے جاتے تھے وہ وائس آف امریکہ کی باصلاحیت ٹیمز اب اپنے گھروں سے پیش کر رہی ہیں۔ اس سب کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ آپ تک تصویر کا اصل رخ پہنچانے اور آپ سے رابطے میں رہنے کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ شو کا آغاز کریں گے افغانستان میں امن کی بگڑتی صورتحال کے ذکر سے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان اور سرکاری فوج کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان اور سرکاری فوجوں کے درمیان تازہ ترین جھڑپیں جنوبی صوبے قندھار اور زابل میں ہوئی ہیں۔ افغان محکمہ دفاع کے مطابق جھڑپوں کے دوران تقریباً 50 عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کے مزید 16 اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت 1000 سیکیورٹی اہلکاروں کو رہا کیا جانا ہے، جن میں سے 861 کو رہا کیا جا چکا ہے، جبکہ افغان حکومت نے 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کرنا ہے، جن میں سے ابھی تک تقریباً 4400 رہا ہوئے ہیں۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے میں افغانستان کی حکومت شامل نہیں تھی۔ اسی معاہدے کے تحت مارچ میں بین الافغان امن مذاکرات ہونے تھے، جو قیدیوں کی رہائی کی وجہ سے کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اپنی فوجوں کی تعداد 8600 تک لا کر اس نے طالبان کے ساتھ معاہدے کے لیے اپنے حصے کو برقرار رکھا ہے، لیکن افغان عوام کے خلاف طالبان کے تشدد میں اضافے کی وجہ سے جنگ زدہ افغانستان میں امن کا قیام اب بھی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ کابل حکومت اور طالبان کے مابین امن مذاکرات کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں، جاننے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ ملک میں تشدد کم کرنے کے وعدوں کے باوجود افغان عوام کے خلاف طالبان کے حملوں میں اضافہ جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں اضافے کے ساتھ جنگ ایک اور پرتشدد مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ طالبان امریکی یا اتحادی افواج پر حملے نہ کرنے کے بارے میں محتاط رہے ہیں۔ در حقیقت ایک عرصے میں افغان لوگوں کے خلاف تشدد کے واقعات پہلے سے زیادہ ہیں۔ یہ جنگ کے سب سے زیادہ پرتشدد ادوار میں سے ایک ہے جو ہم نے آج تک دیکھا ہے۔ امریکہ میں افغانستان کی سفیر رویا رحمانی تشویشناک نتائج سے اتفاق کرتی ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے کہ طالبان تشدد کو دباؤ کے ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور اس سے امن نہیں آئے گا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد، جنہوں نے فروری میں دوحہ میں طالبان رہنماؤں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، تمام فریقوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ تشدد میں کمی کریں۔ وہ طالبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدے کے مطابق کابل حکومت کے ساتھ بین الافغان مذاکرات کا آغاز کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان نے معاہدے کے اپنے حصے کو پورا نہیں کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بین الافغان ڈائلاگ اور افغان حکومت کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کا آغاز کریں، ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایسا ابھی تک ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی پریشان کن ہے۔ مائیکل کوگلمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ پر امید ہیں کہ انٹرا افغان امن مذاکرات ہوں گے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں کہ ایسا کب ممکن ہوگا۔ انہیں خوف ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے بیشتر امریکی فوجی افغانستان سے چلے جائیں گے اور جنگ کے میدان میں طالبان مضبوط ہو جائیں گے، تو انہیں کابل حکومت کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ سنڈی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
अमरीकी सदारती इंतखाबात और दीगर मौज़ूआत पर मुख्तलिफ वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान में गो के अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा है, लेकिन इसके अमली तौर पर नफाज के हवाले से कई सवाल भी उठाए जाते रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का मामला, जो कई वजूहात की बिना पर मुतनाज़े हो चुका है। लेकिन मुख्तलिफ मजहबी और समाजी हलकों की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया है, उससे एक बार फिर ये बहस भी गर्म हो गई है कि क्या पाकिस्तानी मुआशरा अक़लियतों, बिलखुसूस पाकिस्तानी हिंदुओं को दीगर शहरियों के बराबर तस्वुर करता है। इसी बहस के कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में। प्रीतम्बर, जो कि अपनी मुकम्मल शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते, इस्लामाबाद में 4 दहाइयों से आबाद हैं, मुलाजमत से रिटायर हो चुके हैं और अपना वक्त अपनी बरादरी के मसाइल के हल के लिए तौर धूप में सर्फ करते हैं। इनके नजदीक शहर में मंदिर की तामीर का मामला इतना बड़ा मसला नहीं जितना कि समाजी रवैयों में हिंदुओं के खिलाफ पाई जाने वाली तल्खी है। हजारों साल से हम इसी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, फिर क्योंकि पहले तो एक ही मुल्क था ना, फिर अलहदा हो गए, तो हम लोग जो अभी 80-90 लाख हिंदू रह रहे हैं वो नहीं गए, और हम लोग अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जो है बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो यहाँ पे 200-300 मंदिर जो है वो गिरा दिए गए थे और काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ था। तो मतलब वो उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। 1.5 साल सोशल मीडिया पर मंदिर की मुखालिफत में लिखे गए पैगामात पढ़कर भी अंदाजा होता है कि एक हल्का है जो भारत में मुसलमानों की मुश्किलात के जवाब में पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए जमीन तंग करने की हिमायत करता है। 2017 में होने वाली मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू शहरियों की तादाद 37 लाख है। अलबत्ता पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के मुताबिक मुल्क में 80 लाख से ज्यादा हिंदू आबाद हैं। कौमी असम्बली में अक़लियतों के लिए मुख्तस 10 सीटों में से 6, जबकि सेनेट में 4 अक़लियती सीटों में से 2 पर हिंदू नुमाइंदे मौजूद हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार जिन इलेक्शन जीत कर आने वाले गैर मुस्लिम नुमाइंदे महेश कुमार मलानी भी हिंदू बरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस्लामी रियासत होने के नाते आइन की रूह से पाकिस्तान के चंद ओहदे, जिनमें वजीर आजम और सदर पाकिस्तान का ओहदा शामिल है, सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्तस हैं। अलबत्ता 73 का आइन अक़लियतों के तमाम इंसानी और समाजी हकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बिल्कुल उनके वो तमाम हकूक मसावी हैं जो एक आम पाकिस्तान के शहरी मुसलमान शहरी के हैं। वो पाकिस्तान में उनको पॉलिटिकल राइट्स हासिल हैं, उनको अपनी मजहबी इबादत गाहों का उनको बनाने का, उनमें इबादत करने का, अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने का, उसकी तबलीग करने का, उस तमाम का पाकिस्तान के आइन ने उनको पूरी आज़ादी दे रखी है। जो उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी है उसकी भी जो जमानत है वो पाकिस्तान का आइन उनको मुकम्मल तौर पर देता है कि ये महफूज रहेगी। लेकिन प्रीतम्बर का कहना है कि हिंदुओं के देरीना मसाइल अब भी हल नहीं हो रहे, जिसके बायस वो भारत हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस मसले से मतलब दिल्ली जो है ना, वो सिंध में ये 3-4 ऐसे वाक़यात होते हैं, 3-4 लड़कियां जो है वो किडनैप होती हैं। सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना, फेडरल गवर्नमेंट कुछ कोई एक्शन लेती है। सिंध में रेंजर्स भी तैनात है ना, तो रेंजर्स भी कोई एक्शन नहीं लेती है। वफाकी हुकूमत के अरकान का कहना है कि वो अगवा और मजहब की जबरी तब्दीली के मामले से बखूबी आगाह हैं और इसे रोकने के लिए एक नया कानून बनाने का फैसला किया जा चुका है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, वो 22 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, एमएनएज एंड सेनेटर्स। अनुराग काकड़ साहब जो है उसको चेयर कर रहे हैं और उनका जो मिशन है या असाइनमेंट ही उनको एक है कि वो फोर्स्ड कन्वर्जेंस रोकने के लिए कोई लेजिस्लेशन प्रपोज करे। तो कोविड की वजह से उसमें जरूर डिले आया। न्यूयॉर्क
टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा की जानिब से 2016 से 18 के दरमियान पाकिस्तानियों को तवील मुद्दती कयाम के लिए वीजों के इजरा में नुमाया इजाफा किया गया। ऐसे वीजे हासिल करने वालों में पेशतर पाकिस्तानी हिंदू हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो हल्के भी हैं जो हिंदू बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो के हक में हैं। शरीयतों को उतने हकूक नहीं दिए जाते जितने रिक्वायर्ड उनकी डिमांड होती है, तो इस वजह से काफ़ी उनके साथ ज्यादतियाँ भी होती हैं। हमदर्दी का ये अंसर ट्विटर पर पैगामात में भी नजर आता है। प्रीतंबर जैसे अक़लियती बरादरी के अरकान और माहिरीन कानून दोनों ही इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन मनफी समाजी रवैयों और उनके नतीजे में कवानीन के मुकम्मल इतलाक़ का फुक़दान अक़लियतों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। गितिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,65,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि इस मर्ज के बायस 5,500 से ज़ायद हलाकतें भी हो चुकी हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में हलाकतों की तादाद 500 से ज़ायद है। ताहम हुक्काम का कहना है कि अब हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तफसीलात हमारे नुमाइंदे नज़रुल इस्लाम की इस रिपोर्ट में। फखरुद्दीन सैयद के अहले खाना को अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि वो उनसे बिछड़ चुके हैं। वो सूबे की सहाफ़ी बरादरी के पहले रुकन थे जो कोरोना वायरस के खिलाफ जान की बाजी हार गए। कोरोना कितनी खतरनाक है, यानी मेरे पास इसके अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं अपने 44 इयर्स यंग भाई को अपने हाथों में खो चुका, हालांकि उसकी बेहतर ट्रीटमेंट हो रही थी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस आलमी वबा के बायस 1100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पेशावर सबसे ज्यादा मुतासरा होने वाला शहर है, जहां हलाकतें 500 से तजावुज कर गई हैं। माहिरीन के मुताबिक तालीम की कमी के बायस शहरियों में वायरस के मुतालिक आगाही न होने के बराबर है। हमारी सोसाइटी में हेल्थ एजुकेशन भी बहुत कम है ना, लोगों को ये नहीं पता कि कैसे ख्याल रखना चाहिए, कोरोना को आप कैसे स्टॉप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो कोरोना को मानते ही नहीं है कि ये क्या कोई बला नहीं है, और दूसरे जो लोग मानते हैं उनको नहीं पता कि इसको हम कैसे इसका तदारुक कर लें। पेशावर का लेडी रेडिंग अस्पताल सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां कोविड-19 के मरीजों के लिए 205 बेड्स और 44 वेंटिलेटर्स मुख्तस हैं। इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस के मरीजों का बोझ कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा था कि 90+ हमारे पास पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट थे, डेथ रेशो भी ज़्यादा थी, तो अभी पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं। करंटली जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ 26 पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हैं, तो मरीज़ों की तादाद में जो है ना खातिर खा कमी आई है। 40 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल पेशावर शहर में अब भी ज्यादातर अफराद मास्क और एहतियाती तदाबीर के बगैर ही नजर आते हैं। हुकाम का कहना है कि फिलहाल सूरत हाल काबू में है, ये ना बिगड़े इसके लिए आने वाले दिनों में मजीद एहतियात की जरूरत है। हमने टाइम लिया, हमने अपने हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट किया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू जो है डिजीज़ के स्प्रेड को स्लो डाउन किया, उसका हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ, ईद, मुहर्रम, विंटर, जब पूरी दुनिया कह रही है कि ये कोरोना वायरस 1-2 साल रहेगा, तो अभी भी ये बड़ा ज़रूरी है कि वी डोंट लेट आवर गार्ड डाउन, हम जो है बिल्कुल तैयार रहें। हुकाम का यह कहना कि कोरोना वबा के फैलाव पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, ताहम अब भी आवाम की बड़ी तादाद टेस्ट कराने से कतरा रही है। उन्हें खदशा है कि कोरोना टेस्ट मस्बत आने की सूरत में उन्हें मुआशरती तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कोविड-19 से बचाव के लिए हुकूमत ने वाज़े हिदायत, उसूल और अहकामात जारी कर रखे हैं, जो कि सूबे के हर शहर, देहात और कस्बे के लिए यकसां हैं, जिस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़िलाई कमेटियां भी मुतहरिक हैं। लेकिन क्या वाकई लोग कोरोना वबा के नुकसानात से वाकिफ हैं और हुकूमती हिदायत पर अमल पैरा हैं? तफसीलात जानते हैं लाहौर से समन खान की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इंफरादी सतह की हिदायत के मुताबिक अवामी मुकामात पर मास्क पहनना, एक दूसरे से कम अज कम 2 मीटर का फासला रखना, कारोबारी मराकिज को हफ्ते में 5 दिन खोलना और रोजाना शाम 7 बजे बंद कर देना लाजिम है, जबकि इज्तिमाई तौर पर हफ्ता और इतवार के रोज स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई जा रही है। ये बुनियादी हिदायत सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं, बल्कि सूबे पंजाब के दीगर तमाम शहरों, देही इलाकों और उनके रिहायशियों के लिए भी हैं।
ज्यादा दूर नहीं, लाहौर से सिर्फ 100 किलोमीटर की हदूद में कोविड-19 से बचाव के इकदामात पर किस कदर अमल दरामद हो रहा है, इसके लिए चंद करीबी शहरों का सफर करते हैं और जायजा लेते हैं। लाहौर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जनूब की तरफ बाबा बुल्ले शाह की धरती शहर कसूर में दुकानों के बाहर हिदायत तो चस्पा हैं, लेकिन मुश्किल से ही कोई मास्क पहने या फासला रखे दिखाई देता है। डंडा सबसे बड़ी चीज है, ये डंडे की वजह से है। हुकूमत के साथ मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये हुकूमत ने बोला कि इसको ये मास्क लगाओ, ये करो, वो करो, वरना इधर कसूर में कोरोना का नाम भी नहीं है। कसूर वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम घट है, अच्छा है, इतनी बीमारी नहीं है। सख्ती होनी है जिन्नी लाहौर से उन्नी कसूर से। होटल का काम में कितनी देर बैठ के सीटिंग ना होवे, उन्नी देर कोई गाहक नहीं। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक अब तक कसूर में कोरोना वायरस के कम से कम 300 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि अमवात 0 हैं। लेकिन ग्राहकों के मुंतजिर कारोबारी अफराद हुकूमती हिदायत पर तनकीद करते नजर आते हैं। हफ्ता इतवार जो छुट्टी करे कोरोना चला जाता, 7 बजे दुकाना बंद कर दो जी, कोरोना चला जाता। सुबह का कारोबार इन्होंने, रात का कारोबार कहते नहीं 7 बजे बंद कर। बाबा बुल्ला शाह रहमतुल्लाह दे सलाम करते हैं। उस तो बाद फलूदा लै गए, अंदरसे लै गए, मठियाई लै गए, मेथी। लाहौर के शुमाल में वाक़या मुरीदके की जानिब जाएं तो यहाँ भी कोरोना वायरस से मुतल्लिक अहकामात पर अमल न होने के बराबर है। असिस्टेंट कमिश्नर है और दीगर इंतजामिया है, गाय बगाए मार्केटों में जो है जब छापे मारती हैं उस वक्त लोग जो है मास्क पहन लेते हैं। जब ये छापा ख़त्म हो जाता है, ये चले जाते हैं, मास्क फिर जो है ना उतार दिए जाते हैं। कोरोना SOPs पर जो है कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर मुरीदके ने दुकानों पर जो है, होटल्स पर बाकायदा SOPs के तहत जो है हदायत जारी की हैं, जिसके तहत जो है होटल्स जो हैं उनको कहा गया है कि आप पार्सल कर सकते हैं, खाना बैठाकर नहीं खिला सकते। लेकिन होटल्स मालकान जो है उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं और लोगों को बैठाकर खाना खिला रहे हैं। इंतजामिया इसे चश्मपोशी का मुजाहरा कर रही है। गुजरांवाला आए तो यहाँ अब तक कम से कम 3500 केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन फरागत के औकात बढ़ने से रिहायशी इलाकों में मोहल्लेदारों का साथ उठना बैठना अब पहले से ज्यादा हो गया है। जुकाम की बीमारी अगे भी लोगों तो मुंतकिल हो जाती थी, एक नूं जुकाम लगा दूसरे नूं लग जाता, यही तो है वे। लेकिन अजे तक ये मसला तो किसी नहीं पेश आया गया साढ़े इलाके दे विच। असीं रोज इत्थे ऐसा ही खेडी दा दुकानां बंद करदे ने, कहंदे ने पुलिस वाले आंदे ने, कोई पैसे पूसे लैके ते फिर चला जांदे। लाहौर के करीब वाक़या इजला का बड़ा रकबा ज़रई है। महकमे ज़राअत ने फसलों की कटाई और बवाई के दौरान एहतियाती तदाबीर से आगाही के लिए पैगामात बजरिया SMS 3 लाख से ज़ायद किसानों को भेजे हैं। जहाँ पर कटाई और गहाई की एक्सरसाइज या ये हो रहा हो अमल, वहाँ पे पानी का इंतजाम साथ रखें, साबन वहाँ पे मौजूद हो, वक्फे वक्फे से आप हाथ धोएं, फिर इसके साथ साथ सैनिटाइजर्स का इंतजाम रखें, उसको इस्तेमाल करें। तो ये हम मीडिया के जरिए हमने देखा होगा कि हमने इस पे अखबारात में इश्तिहार दिए हैं। हाथ साबुन से बार बार अच्छी तरह धोएं। सुनने और देखने की हद तक तो किसानों को पैगामात समझ आते हैं, लेकिन उन पर अमल करना अलग बात है। जब ज़्यादा वक्त होता है, मेहनत मशक्क़त का, तब तो लोग जो ना वो नहीं इस्तेमाल करते। ना तो इधर कोई ऐसा सैनिटाइजर सिस्टम है गांव में और ना ही मास्क वगैरह है। लेकिन एहतियातन जो लोगों ने खुद परचेज किया वो अपने लेके इस्तेमाल करें और अपनी हिफाजत खुद के जरिए जो ना वो चल रहे हैं। लाहौर के मुज़फ़्फ़रात में वाक़िया शहरों में जाकर पता चलता है कि कोरोना वायरस ने कारोबारी जिंदगी को मुतासिर जरूर किया है, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल आबादी के एक बड़े हिस्से को नागवार महसूस हो रहा है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। दुनिया भर के जिन ममालिक में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, उस फहरिस्त में अमेरिका का बदस्तूर पहला नंबर है। यहाँ कोविड-19 से मुतासरा अफराद की तादाद 40 लाख तक जा पहुंची है, जबकि इस बीमारी से तकरीबन 1,45,000 अफराद हलाक हो चुके हैं।
ट्रंप इंतजामिया ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ $2 अरब मुआहदे का ऐलान किया है, जिसके तहत कामयाब ट्रायल की सूरत में मुमकिना तौर पर मौसर साबित होने वाली वैक्सीन की इस साल दिसंबर तक अमेरिका के लिए तकरीबन 10 करोड़ डोजेज तैयार की जाएंगी, जिसके बाद दूसरे फेज में ये कंपनी मजीद 50 करोड़ वैक्सीन फराहम करेगी। अमरीकी वजीर सेहत एलेक्स एजार के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन अमरीकी अवाम को मुफ्त दी जाएगी। एक ऐसे वक्त जब दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद के एतबार से अमेरिका पहले नंबर पर है और अवामी राय के जायजे ये बता रहे हैं कि अमरीकी अवाम सदर ट्रंप की जानिब से इस वबा से निमटने के अंदाज पर खुश नहीं, तो तवील अरसे के बाद न सिर्फ सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस प्रेस ब्रीफिंग्स का सिलसिला अचानक शुरू कर दिया, बल्कि उन्होंने इस बहरान के शुरू होने से अब तक पहली बार मास्क पहनने की अहमियत पर जोर दिया। इसकी वजूहात क्या हैं, आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। पीयू रिसर्च के एक हालिया सर्वे के मुताबिक सिर्फ 65% बालिग अमरीकियों का कहना है कि वो अवामी मकामात पर या स्टोर्स के अंदर मास्क पहनते हैं। कई महीनों तक चेहरा ढांपने को अहमियत न देते हुए इस हफ्ते के आगाज में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क पहने हुए अपनी एक तस्वीर ट्वीट की और कहा, ये वतन से वफादारी है। मंगल के रोज वो व्हाइट हाउस में होने वाली कोरोना वायरस प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए और मास्क पहनने के मामले पर अपनी हिमायत का इजहार किया। मास्क यहाँ मेरे पास है, मैं इसे रखता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इससे कोई मसला नहीं है और मैं ये कह चुका हूँ कि मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं ग्रुप में हूँ तो मैं मास्क पहनूंगा। अप्रैल में अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी साबिका हिदायत में तब्दीली लाते हुए तिब्बी अमले के साथ साथ तमाम अमरीकियों के लिए मास्क पहनना जरूरी करार दिया था, लेकिन अमरीकी सदर पिछले महीने तक अवामी मकामात पर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये कहकर इसे रद्द कर दिया था कि लोगों को आजाद होना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज के एक सर्वे के मुताबिक 64% अमरीकी अफराद सदर ट्रंप के कोरोना वायरस के बहरान से निमटने के तरीक़ाकार को रद्द कर रहे हैं। वबा बढ़ने के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उन इलाकों में भी जहां रिपब्लिकन गवर्नर्स ने उनकी बात सुनते हुए कारोबारों को खोला और अब उन्हें वबा की वजह से सख्त तरीन मुश्किलात नजर आ रही हैं और उस वजह से उनका काम और भी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से 1,40,000 से ज्यादा हलाकतें और 38 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और CDC का नया डेटा बताता है कि असल तादाद इससे 10 गुना ज्यादा हो सकती है। इंतजामिया इस बात पर मुसर है कि ये नया इजाफा टेस्टिंग बढ़ाने से हुआ है, लेकिन माहिरीन कहते हैं मुल्क में कोरोना वायरस पर कोई कौमी पॉलिसी न होने की वजह से मुल्क का इतना बुरा हाल हुआ। The countries that have done well have had a clear national policy that put the public health people. वो ममालिक जिन्होंने इस मामले पर काबू पाया उनके यहाँ वाज़ेह कौमी और तिब्बी पॉलिसी मौजूद थी। सियासी रहनुमाओं ने तिब्बी अमले की मदद की और आबादी को वाज़ेह पैगामात पहुँचाते रहे। अवाम को पता था कि प्रोग्राम क्या है और वो ताउन करने को तैयार हैं। यही कामयाबी का फॉर्मूला है और गवर्नर्स पर सब कुछ छोड़ देना तबाही को दावत देना है। एक तरफ कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद अमरीकी अफराद गर्मियों की छुट्टियों के लिए साहिल समंदर जैसी जगहों पर अब भी जा रहे हैं और सरकार की जानिब से ऐसे में मास्क पर बयानात, टेस्टिंग और मईशत को दोबारा खोलने के इक़दामात रज़ाकाराना हैं। पैट्सी विरा कुसवारा के साथ नुक़बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। V360 और दीगर वीडियोस देखने के अलावा उन पर अपनी राय देने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। मुझे फाइजा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए।